Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you would be fine. Take out your textbooks. This is chapter number 3 of your textbook, A Polar Explorer, and a story about Mr. Amundsen, who was an explorer. And why is it a polar? It means it is related to North Pole and South Pole. So we are going to discuss about him in detail in this chapter. First, we are going to deal with the word meanings that are given over here in the words to know box, and then we are going to start the explanation of this chapter. Okay, students. So this is all about Mr. Amundsen, a polar explorer. We have few words here. Caribou means reindeer. ये कहते हैं हिरन को. Disputed, disagreed with, किसी चीज के साथ इख्तिलाफ हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना. Expedition, a journey by a group of people with a clear aim to explore. Expedition कहते हैं एक ऐसी जर्नी, एक ऐसा सफर जो किसी खास मकसद के तहत किया जाता है, कुछ तलाश करने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए. Encircling means surrounding, चारों तरफ से घेर लेना. Inuit, it's Inuit, previously Eskimos, the people who live in the Arctic region. It's basically a group of people, a certain group of people who were first Eskimos. एक खास तरह के लोगों को कहा जाता है, जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी, इंडिया में रहने वालों को इंडियन. तो इसी तरह से इन्यूट एस्किमोस को कहा जाता था, जो रहते हैं अलास्का में और नॉर्थ कनाडा के अंदर. इन लोगों को हम कहते हैं इन्यूट. नॉर्वे इज अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप. Obey means to do what you have been told to do by someone in charge. Obey means to listen to someone who is in charge, who is elder than you, or who is your officer. ठीक है, किसी की बात मानना. Ostentatious means deliberate and obvious display. एक चीज जो खुद से जाहिर हो रही हो उसको कहते हैं ostentatious. Oslo is the capital of Norway. आपको नॉर्वे ऊपर बताया था कि ये कंट्री है और इसका जो कैपिटल सिटी है वो ओस्लो है. Pacific means peaceful, बहुत ही ज्यादा पीस के साथ, बहुत ही ज्यादा सुकून के साथ. Perseverance means persistence in doing something despite difficulties or delay. किसी चीज को कंटेन करना, किसी चीज को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना, किसी चीज को बगैर रोके हुए अंजाम देने को कहते हैं perseverance. Then reciprocate means to repay someone's action in a similar way, to do same as someone, to copy someone, to imitate someone. बिल्कुल किसी ने जैसा किया है वैसा ही उसके एक्शंस को रिपीट कर देना. Scrutiny means close, careful examination. ठीक है, किसी चीज को बहुत अंदर तक गहराई से उसके बारे में उसको एग्जामिन करना, उसको इंस्पेक्ट करना. Wrecked means destroyed at sea. कोई चीज जो समंदर में तबाह हो जाती है उसको कहते हैं wrecked. Okay, now let's start the explanation and reading of the chapter from the very beginning. Roald Amundsen was born in Norway in 1872. As a child, he read about famous British explorers. So this was his hobby. ठीक है, as we used to have hobbies like reading books or gardening or doing something, some collection. He has a hobby of reading about famous British explorers. So he used to start reading about them from his early childhood. बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा explorers के बारे में पढ़ने का शौक था. He joined as many sports team as he could and slept with his windows wide open despite the freezing cold Norwegian winter so that he would be fit, strong and ready if he got the chance to be an explorer. तो उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स टीम को भी ज्वाइन किया और अपनी सारी खिड़कियां खोलकर सोते थे ताकि ठंडी ठंडी हवाएं उनके कमरे में आए और उनका जिस्म बहुत मजबूत बन जाए. जैसा कि कोई आर्मी ज्वाइन करता है तो उनको बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, ठंडे ठंडे पानी में उनको जो है बाथ दिलाया जाता है और इसी तरह से उनकी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है. तो वो भी अपने आप को ट्रेन कर रहे थे मुश्किल से मुश्किल हालात के लिए ताकि जो है वो बिल्कुल फिट हो, स्ट्रांग हो और हर वक्त रेडी हो एक एक्सप्लोरर बनने के लिए. Amundsen's family worked in the shipping industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor. उनकी मदर को ये सब कुछ पसंद नहीं था. वो चाहती थी कि इस खतरनाक जिंदगी से उनको दूर रखें और उनको क्या बना दें, एक डॉक्टर बना दें. He obeyed his mother's wishes while continuing to read about explorers. When he was 21 years old, his mother died.
तो उनके हक में क्या हुआ कि उनकी मदर का इंतकाल हो गया जब वो सिर्फ 21 साल के थे। उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, डॉक्टर बनने के लिए स्टार्ट किया, उसके लिए पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी मदर का जब इंतकाल हो गया, अमंडसन लेफ्ट यूनिवर्सिटी एंड बिगैन हिज लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। वहीं से उन्होंने अपनी जिंदगी एक जुस्तजू के अंदर लगा दी और एक एक्सप्लोरर बनने की कोशिश शुरू कर दी। Here they are providing us with some of the Amundson's achievements that he achieved throughout his life. Number 1, he was the first to pass through the Northwest Passage in the Arctic Ocean. वो सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट रास्ते को पार किया था आर्कटिक ओशन के अंदर। ही वॉज इन द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू रीच द साउथ पोल। इसी तरह से साउथ पोल, अच्छा दुनिया का अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा ऊपर की साइड पे नॉर्थ पोल होता है और नीचे साउथ पोल होता है। तो ये वो है अमंडसन साहब कि जिनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की तरफ एक्सप्लोर करने का एजाज हासिल है। वो पहले बंदे हैं जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ गए आर्कटिक ओशियन में भी, और जो पहला सफर था साउथ पोल की तरफ उसमें भी वो शामिल थे। इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू द नॉर्थ पोल, और उन्होंने 1926 के अंदर 1926 के अंदर एक कामयाब सफर किया नॉर्थ पोल की जानिब, यानी साउथ पोल भी चले गए वो 14 दिसंबर 1911 में, और उसके कितने साल के बाद, 15 साल के बाद वो कहाँ चले गए, नॉर्थ पोल भी चले गए। ही इज recognized as the first person to have reached both poles, और वो उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम सरे फहरिस्त है जिन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को पहुंचे हैं। ठीक है। इन अर्ली एक्सपेडिशन अमंडसन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। क्रू मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ टीम डूइंग समथिंग टुगेदर फॉर अ कॉज, फॉर अ पर्पस। ठीक है, एक टीम जो एक काम कर रही होती है, किसी मकसद के तहत काम कर रही होती है, उसको कहते हैं क्रू। ही वॉच्ड, लिसन्ड एंड लर्नड सम यूजफुल स्किल्स। Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctors' hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. ठीक है, तो उनकी क्या आदत थी, जब किसी इंसान के अंदर सुनने की, गौर करने की, समझने की, चीजों को सीखने की सलाहियत होती है तो वो बहुत आगे जाता है, और इनके अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद थी। वो देखते भी थे गौर से, सुनते भी थे और सीखते भी थे उन स्किल्स को जो उनके लिए कारआमद होती थी। एक मरतबा उनका शिप फंस गया बर्फ के अंदर, तो उन्होंने देखा डॉक्टर्स ने किस तरह से लोगों की जान बचाई। किससे? एक डिजीज से जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी इज अ डिजीज caused by a lack of vitamin C. It can lead to illness, the loss of teeth and death from bleeding. ये एक डिजीज का नाम है जिसमें होता ये है कि इंसान के जिस्म से विटामिन सी बहुत कम हो जाता है। इसमें इंसान बीमार हो जाता है, अपने दांत खो देता है, और कभी कभी इसमें मौत भी वाक़ई हो जाती है इंसान के जिस्म से ब्लीडिंग होने की वजह से। तो इस जर्नी के अंदर उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने किस तरह से स्कर्वी से जान बचाई जा सकती है ड्यूरिंग दी शिप ट्रैप्ड इन आइस। जब जो है वो उनका जहाज पानी में फंस गया था, बर्फ में फंस गया था, तो उस दौरान उन्होंने ये भी सीखा। अच्छा जी, लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वर्ड्स दैट वी हैव रेड राइट नाउ। एक्सप्लोरर इज द वन हु ट्रेवल्स इन सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी तलाश में, जो जुस्तजू में एक जगह से दूसरी जगह सफर किया जाता है, उसको कहते हैं एक्सप्लोरर। पोलर मीन्स नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। पोल्स से पोलर है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के करीब जो चीजें होती है उसको पोलर कहा जाता है। डेस्पाइट, बावजूद, इवन दो। नॉर्वेजियन, रिलेटिंग टू द नॉर्वे। जैसे पाकिस्तान से कोई चीज रिलेटेड होती है उसको पाकिस्तानी कहा जाता है, इंडिया से कोई चीज रिलेटेड होती है उसको इंडियन कहा जाता है, ऐसे नॉर्वे से कोई चीज रिलेटेड होगी तो उसको नॉर्वेजियन कहा जाएगा। क्रू कहते हैं टीम को, यूनिट को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को जो किसी कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, कम टू पेज नंबर 28 and here we have some more information about him. When he was 28 years old, at the age of 28, he started his journey at the age of 21 when his mother died, and now he has turned 28 years old. That is after 7 years of his start of the journey. Amundsen became the leader of expedition. सिर्फ 7 सालों के अंदर वो इस सफर के क्या बन गए? लीडर बन गए with his own ship, और उस शिप का नाम क्या था? जोए। ठीक है, इसको लिखा जाता है GJOA और पढ़ा क्या जाता है? जोए। द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्रेम म्यूजियम इन ओस्लो। आज भी ये जहाज मौजूद है फ्रेम म्यूजियम के अंदर ओस्लो में। फ्रॉम 1903 to 1906, दैट इज द पीरियड ऑफ 3 years, Amundsen took a crew of 6 men on Joe
ऑन एन एक्सपेडिशन टू फाइंड अ रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज। ठीक है, इन्होंने अपने साथ 6 लोगों का एक टोला लिया और ये कहाँ चले गए? ये चले गए नॉर्थ वेस्ट पैसेज की तरफ, नॉर्थ वेस्ट रास्ते की तरफ चले गए। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज किसको कहा जाता है? शुरू होता है आर्कटिक ओशियन से, ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशियन तक जाता है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स द एरिया इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। होता यह है कि इन इलाकों के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा शदीद सर्दी होती है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ इज फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम। For a short while each year, the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. बहुत थोड़े वक्त के लिए ऐसा होता है कि वहां पर जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी शिप्स होती हैं, छोटे छोटे बोट्स होती हैं, उनके लिए रास्ता बन जाता है कि वो वहां से गुजर जाएं क्योंकि बर्फ कुछ पिघल जाती है। जो air was small enough to pass through these waters and over the shallow areas that would have wrecked bigger ships. तो इनका जो जहाज था वो इतना छोटा था कि वो उस पैसेज को आसानी के साथ